اور جب وہ کفر نحوم میں داخل ہوا، ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداون، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اسے شفا دوں گا۔ صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداون، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا نوکر شفا پا جائے گا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جان، خدا کی برکت ہو۔ ہم سن رہے ہیں کہ یسوع مسیح زمینی سفر میں دیکھے سفر کر رہے ہیں، کفر نحوم کا علاقہ ہے، یسوع مسیح گزر کر رہے ہیں، سفر میں ہے، سفر میں مجمع نہیں ہے، عبادت نہیں ہو رہی، کہ دعا نہیں ہو رہی۔ دھیان سے سنیں گے، یسوع مسیح سفر میں ہے، کفر نحوم میں سے گزر کر رہے ہیں، اور یہاں لکھا ہے کہ ایک صوبیدار یسوع مسیح کے سامنے آ جاتا ہے۔ چلتے 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 سفر میں وہ صوبیدار یسوع مسیح کو اپنے نوکر کے بارے یہاں پر بتاتا ہے کہ میرا نوکر بڑی تکلیف میں ہے، کیونکہ وہ فالج کا مارا ہے۔ کہاں پڑا ہوا ہے؟ گھر پڑا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کیونکہ سفر میں یسوع مسیح، اور یہ سفر میں رستے میں ملاقات ہوتی ہے یسوع مسیح کے ساتھ۔ وہ رستے ہی میں یسوع مسیح سے یہ کہتا ہے کہ میرا خادم نوکر فالج کا مارا کہاں پڑا ہوا ہے؟ گھر پر۔ میرا نوکر گھر میں، لیکن بڑی تکلیف میں، میری طرف دیکھیں، بڑی تکلیف میں ہے۔ یعنی اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صوبیدار کو اپنے نوکر کی کیا ہے؟ فکر ہے۔ اس کے اندر اس کے اندر بھی یہ بوجھ ہے کہ میرا نوکر تکلیف سے کیا ہو جائے؟ آزاد ہو جائے، فالج سے آزاد ہو جائے۔ اور وہ یسوع مسیح سے درخواست کرتا ہے، اس نے درخواست کی ہے، اپنے نوکر کی درخواست کرتا ہے۔ وہ نوکر کے بارے میں فکر مند ہے، بوجھ رکھتا ہے کہ میرا نوکر بڑی تکلیف ہے۔ وہ جانتا ہے، اصل میں نے پہلے بتا دیا، اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ شخص صوبیدار ہے، گورنمنٹ کا آدمی ہے، یہ فورس کا آدمی ہے، پر اس کے اندر یہ ایمان ہے کہ جب یہ کہہ دے گا تو میرا نوکر کیا ہو جائے گا؟ شفا پا جائے گا۔ نوکر ہے کہاں ہے؟ گھر پر۔ نوکر گھر پڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر صوبیدار کے اندر اپنے نوکر کے لیے یہ ایمان ہے کہ میں جس کو کہہ رہا ہوں، یعنی جس کے سامنے درخواست کرتا ہوں اپنے نوکر کی، جب یہ کہے گا تو میرا نوکر کیا ہو جائے گا؟ شفا پا جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں ہم نے پڑھا پورا ورد پڑھا ہم نے کہ یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ میں آ کر سے کیا دوں گا؟ شفا۔ میں آ کر شفا دوں گا، کیونکہ سفر میں جا رہے کہ یسوع مسیح جا رہے، لیکن اس نے اس بات کو روکا کہ نہیں، آ کر شفا نہیں دینی، بلکہ تو یہاں سے، یعنی کھڑا ہے یہاں سے اپنی زبان سے کہہ دے تو میرا نوکر کیا ہو جائے گا؟ شفا پا جائے میرا گا۔ نوکر ٹھیک ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اب میں یہ سکھانا چاہتا ہوں آپ کو، اس کے اندر یہ ایمان کی بلیوٹی ہے، قوت ہے، پاور ہے۔ وہ یسوع مسیح کو جانے نہیں دیتا، نہ وہ یہ چاہتا کہ آ کر شفا دے، اس کو یہ پتہ نہیں آ کے بھی دینی ہے، ہون بھی دینی ہے،
यानी देनी है नहीं है, आके दे, यहां से दे दे, तू कह दे, तू कहेगा तो मेरा नौकर क्या करेगा? शिफा पा जाएगा। शिफा पाएगा। यीशु मसीह इस आदमी की इस बात से लिखा है, हैरान भी हुआ। लिखा हुआ हैरान हो जाता है। और आगे मैं पढ़ूंगा, थोड़ा ध्यान के साथ सुनेंगे। नाम याद पढ़ूंगा, नाम याद। क्योंकि मैं भी दूसरे के अख्तियार में हूं और सफाई मेरे ताबिया हैं, और जब मैं एक से कहता हूं कि आ तो वो आता है, अगर मैं एक से कहूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहूं कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कहूं ये कर तो वो करता है। जब यीशु मसीह को वो ये बात बता रहा है कि मैं क्या हूं, सूबेदार हूं और मेरे पास ये अख्तियार है, मेरे मुताबिक सफाई है, मैं किसी भी सिपाही को कहूंगा आने के लिए तो आएगा, जाने के लिए कहूंगा जाएगा, अगर मैं कहूंगा काम कर तो क्या करेगा? काम करेगा, क्योंकि मेरे पास क्या है? नौकरों का अख्तियार, मैं एक सूबेदार, मेरे पास पावर है। अब उसने अपनी बात सुनाकर यीशु मसीह को ये बात बताई। हालेलुया। असल में ये बताना चाहता है, मैं एक गवर्नमेंट का आदमी, मेरे पास ये पावर है, अगर मैं भी सिपाही से कहता हूं आ जा तो आ जाएगा, कहूं जा तो चला जाएगा, कहूं काम कर तो वो करेगा, क्योंकि मेरे पास क्या है? गवर्नमेंट का, उस वक्त का उन्होंने मुझे ये अख्तियार दिया हुआ, और सफाई इनकार नहीं कर सकता मेरा, और करेगा भी नहीं, कर भी नहीं सकता और करेगा भी नहीं। अख्तियार में ये एक पावर होती है, अथॉरिटी होती है कि उसका इनकार नहीं कर सकते। और यहां वो जब अपनी बात से बताता है तो यहां लिखा, मैंने कहा 10वीं आयत में, यीशु मसीह ने यह सुनकर तज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इस्राएल में भी ऐसा अमान नहीं पाया। हालेलुया। मैंने ऐसा ईमान, मैंने आपको बता दिया कि यीशु मसीह क्या देखना चाहता है? हमारा ईमान। ईमान, वो किसी कौम का, फिरके का, मजहब का, तंजीम का, कहां का भी हो, जहां का भी हो, अगर उसके अंदर ईमान है कि यीशु मसीह मेरा ये काम कर सकता तो फिर है। हालेलुया। फिर है। अब यहां पर बखातब करके यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ऐसा ईमान मेरी तरफ देखें, कहां नहीं पाया? इस्राएल में भी नहीं पाया। लिखा यीशु मसीह उसके ईमान की तारीफ करता, और मैं आपको सिखा रहा हूं। अब जब हमारे अंदर ईमान होगा, अगर ईमान है तो फिर यीशु मसीह को पता है इसका क्या है? ईमान है। ईमान तो बड़ी दुनिया रखती है, सारी दुनिया का ईमान ही मैं कहता हूं। लोग कहते हैं हाँ साਡਾ ईमान है यीशु मसीह, जिसको बोलो हाँ साਡਾ ईमान यीशु मसीह है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने मसाइल, मसले, मुश्किलें, परेशानियां खुदावंद के सामने पेश करते हैं। ये ईमान नहीं, ये बाकी ईमान है। ये नस्का हम बाकी ईमान हमारा सारा ही है, हमारा ईमान है। यहाँ खुदावंद क्या है? हमारा ईमान है। अब वो मौजूद है तो फिर हमारा ये ईमान होना चाहिए कि फिर मैं जोड़ी गल काम ना हूं, खुदावंद वो की करेगा, वो मैं देख करेगा। ये ईमान होना चाहिए। खास जो ईमान की सिद्ध है वो ये होती है कि हम अपने मामले को, अपने काम को, अपनी बात को खुदा के सामने पेश करें। जिस तरह सूबेदार ने कहा, मेरा नौकर फारज का मारा कहाँ है? घर पे पड़ा है, तू अपनी जबान से कह देगा तो मेरा नौकर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ऐसा ईमान नहीं पाया जैसा ये इसके अंदर है। मैं आगे पढ़ूंगा, आप सुनेंगे क्या मैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि तेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक हो जाएंगे। प्रेज़ द हालेलुया, आमीन। 13वीं आयत पढ़ूंगा, 12वीं नहीं पढ़ूंगा। यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा, जा
जैसा तूने इत्तेकाद किया वैसा ही तेरे लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जैसा तूने, अब यीशु मसीह ने उससे बताया कि तूने मुझ पे क्या कर लिया है, इत्तेमाद किया, इत्तेकाद किया है। तुझे ये पता है कि अगर मैं कह दूंगा तो तेरा नौकर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैं भी ये कहता हूँ, जा फिर जैसा तूने इत्तेकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो जाए। उसी घड़ी उसके नौकर ने शिफा पाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नौकर घर में है, नौकर पाप नहीं है, केवल लाया थोड़ी है। अब देखिए, फिर मैं ये क्या बताना चाहता हूं, यीशु मसीह सफर में है, कहीं इबादत नहीं, मजमा नहीं है, कहीं दुआया मीटिंग नहीं है। आप हैरत करेंगे, देखिए रास्ते में चलते चलते उस आदमी के अंदर ये बात है कि तू यहां खड़ा होके कह दे, नहीं मेरे घर नहीं आना, मेरे घर नहीं आना। घर क्यों नहीं आना? मैं बड़ा गुनहगार, मैं गुनहगार, मैं ये भी जब मेरी छत के नीचे आ जाता हूं, मैं तो गुनहगार आदमी, मैं ये भी नहीं चाहता तू वापस आके मेरे नौकर को छुपा दे। मुझे देखो छोड़, मैं ये चाहता हूं कि तू अभी और रिसीव कर, क्या कह दे, आप इस जुबान से कह दे, बस तू ये कर दे तो मेरा नौकर क्या हो जाएगा, शिफा। ये इसके अंदर ये बात है। यीशु मसीह तो कहता है कि मैं आकर छुपा दूंगा जी, बट वो जाने नहीं दे रहा। मुझे देखते जी वो जाने ही नहीं दे रहा, कहता नहीं, जब तक तू ये नहीं कहेगा कि मेरा नौकर ठीक हो जाए तू आगे नहीं जाए। और तू कह दे, बस तूने कहना है। अब ये सूबेदार का क्या था, ईमान था। ईमान था। ईमान कैसा होना चाहिए? ईमान इससे कहते हैं जिसकी तारीफ कौन करे, की तारीफ कौन करे, मेरी तरफ देख, खुदावन। कौन करे? खुदावन। जिसकी तारीफ खुदावन करे, इसे ईमान कहते हैं। हमने अपने ईमान की तारीफ नहीं करी कि मेरा बड़ा ईमान है, मेरा बड़ा ईमान है, होगा कुछ भी नहीं। अच्छा, कई बड़ा ईमान ही रख दे। बहुत सारे लोग ईमान रखते हैं लेकिन काम नहीं होते, वो काम करवाते भी नहीं है। असल ईमान उसे कहते हैं जो आपके खुदावन तू कह दे तो हो जाएगा। ये ईमान, असल ईमान इसे कहते हैं। क्या खुदावन पर छोड़ दे, खुद पर नहीं, हम खुदावन पर छोड़ दें कि ये तूने करना है। जब मैं कहता हूं खुदावन तूने करना है तो फिर कौन करेगा? खुदावन करेगा। खुदावन का ये ईमान है, इस ईमान की तारीफ होती है, इस ईमान की तारीफ होती है। मैं ये सकारवाज जिन लोगों का ये ईमान होता है उनके लिए फौरन काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। उनके लिए फिर फौरी, यहां लिखा उसके नौकर ने कब शफा पाई, उसी घड़ी जब यीशु मसीह ने ये कहा था, हाँ कि जैसा तेरा इत्तेकाद है वैसा हो। कह तो दिया यीशु मसीह ने, ये है वो क्या तू कह, तू अपनी जुबान से कह दे, मुंतजर है कि इसकी जुबान से ये अल्फाज निकले। हालेलुया, हालेलुया। सूबेदार ये बात का मुंतजर है, बस उसने कहना है, इसके मुंह से निकलना तो हो जाए। ये बड़ा सब उसका ईमान, ये सूबेदार का ईमान देखिए आप। मैं ये आपको सिखाऊं, हमारा ईमान इस तरह होना चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारे काम हो जाए, अरे मसले हल हो जाए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ईमान इस तरह का रखे कि फिर तू कह, काम तू करना है, खुदा काम तू करना है, तू कर सकना है। मेरे पास अख्तियार है, सूबेदार का मेरे पास ये अख्तियार है। मैं एक नौकर को कहूं चला जा तो जाएगा, मैं एक नौकर को आ जा तो आएगा। अगर मैं नौकर को कोई काम करता तो करेगा। अगर मैं एक सूबेदार होकर अख्तियार रखता हूं अपने सिपाहियों पर, तेरे पास क्या है? तेरे पास आसमान और जमीन का अख्तियार। हालेलुया, हालेलुया। सबको पता है यीशु मसीह के पास कौन सा अख्तियार है? आसमान और जमीन का पता है, बट हम ये नहीं कहते कि फिर दूसरा निकाल। हम ये कहें, मैं ये आसारों कहें, बोले, जोर दे, कहे कर, खुदा मेरा ईमान है तू कर, मैं जानता तू कर सकता है,
जैसे जैसे हम रिपीट करते हैं, हमारे मुंह से ये आवाज निकलती है, तो वैसे वैसे खुदा क्या करता है, पूरा तेरा करता है। ईमान, हालेलुया। तेरा इत्काद है, जैसा तू चाहता है तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। और हालेलुया। मैंने कहा ये उस वक्त की बात नहीं है कि उस वक्त ही खुदा करता था, मैंने कहा ये आज भी है। मैंने ये कहा उस वक्त जमीनी शब्द में यीशु मसीह बदली तौर पर थे, आज मैंने सिखाया किस सूरत में हमारे पास, रूह की अब सूरत रूह में। की सूरत में है। बात एक ही है, बात समझे कि हम कहते तो हैं यीशु मसीह मौजूद है, हम सारे अभी जो बैठे हमारा अकीदा है ये खुदावन इस वक्त हमारे दरमियान क्या है, मौजूद है, रूह की सूरत में मौजूद है, तख्तनशीन है। अब अपने ईमान से हम हर वो काम करवा सकते हैं जिस तरह ये सूबेदार अपने नौकर के लिए यीशु मसीह पर ये ईमान रखता है कि अगर तू अपनी जबान से कह देगा तो मेरा नौकर क्या हो जाएगा, शिफा पा जाएगा। शिफा पा जाएगा। यीशु मसीह इस बात से हैरानुमा इसका यानी इसका बहुत ईमान है मुझ पर, और इसलिए यीशु मसीह ने उसके ईमान की क्या की, तारीफ की। लेकिन तारीफ खुदावन करता है कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया, क्योंकि मैं तो इस्राएल की कोई भेड़ों के लिए आया हूं। तो फिर सूबेदार का ऐसा ईमान था कि उसने अपने नौकर को क्या करवा लिया, ठीक करवा लिया, अच्छा करवा लिया, यानी शिफा दिलवा दी। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूँ, मैंने थोड़े वक्त में ये बात इसलिए सिखाई है, ईमान के बारे में मैं सिखा रहा हूँ, पता नहीं खुदा ने ये बात मुझे दी है कि क्योंकि हमारा ईमान जो इस तरह का नहीं है कि जिसमें हम जोर दे के काम करवाए कि कर तू कर सकता है। और मैं ये आशा कर रहा हूँ जब जहां हम ये बात कहेंगे तो वहां होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा। जो सूबेदार के लिए तो कर दिया, जैसा तेरा तकाद कर लिए वैसा हो जाए। तो आज हम जितने बैठे हैं सबके लिए यही है, अब खुदा में मौजूद है, हम अपने मामले को, अपने काम को, अपने मसले को इस तरह पेश करें कहे कि नहीं तू कर भाई, खुदा तूने करना है। तो अगर हो जाता है तो फिर हम उसके क्या बनते हैं, गवाह बनते, फिर हम गवाही देते। हाँ, खुदावन ने यकीनन जो कुछ मैंने चाहा, जो मैंने कहा मेरे लिए कर दिया। सूबेदार आपका क्या ख्याल, गवाही नहीं देगा, एक गवाही बड़ी देगा। आप पहले तो मैं ये कहता, जो लोग साथ साथ चल रहे हैं सफर में, शिगिरत साथ है, सबने देखा नहीं, गवाही नहीं देखा सब। तो अब ये सूबेदार जब जाके नौकर को देखेगा तो उनके घर वालों को बताएगा ना कि मैंने इसके लिए क्या करवाई थी, शफायत करवाई, मैंने इसका नाम दिया था, तो मेरे वसीला से, मेरे ईमान से ये क्या हो गया है, अच्छा हो गया है। तो ये गवाही फिर आगे चलती चलती बहुत सारे लोगों के पास गवाही चली जाती है। हालेलुया। तो आज हम सीख रहे हैं कि हमारे पास ये ईमान होना चाहिए कि हम खुदा उनको कहते तो वजूद है ही है, तो फिर हमारा ये मामला, हमारा ये काम, हमारा ये मसला, हमारी ये बीमारी, हमारी ये कमजोरी, हमारी इवन जो भी है हमारा, हम यही कह के फिर तुम कह दे, हालेलुया, जब कह दे, जरूर करेगा, जरूर करेगा। हालेलुया। जरूर इसलिए करेगा, उसे पता हाँ इसका ईमान है। तो मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीले से खुदा हमारे ईमान को मजबूत कराए। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना, मसीह के कलाम से हम सुन रहे हैं, सुनने से ईमान पैदा हो जाता है। बस ये सीख रहे हैं कि अगर सूबेदार अपने नौकर की शफा हासिल कर सकता है ईमान से, हम भी कर सकते हैं। तो हमारे भी तो बहुत सारे मामले, बड़ी बीमारियां हमारे अंदर, कितनी बीमारियां भी, कितनी कमजोरियां हैं, तो कितने हमारे काम है, मसले। तो आज हम ये सीखे फिर हम भी खुदा के सामने क्या कर दें, पेश करें। हालेलुया।